थी कमेंटेटर संजीव दोसांझ और मैं कौशिक राय। संजीव जी, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती है। आज ही के दिन उनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। मेधावी छात्र, आईसीएस ऑफिसर, और उसके बाद उन्होंने नौकरी करने के बजाय, एक नौकरशाह बनने के बजाय, उन्होंने अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिया। सभी जानते हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी नेताजी का एक होलोग्राम प्रतिमा का भी निवारण करेंगे इंडिया गेट पर। Thank you, Kaushik. Till the time the statue of the Netaji is installed, a hologram would be inaugurated by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And this, finally, when this statue is constructed, this would be a granite statue, and it would be a magnificent, you can say, a tribute to the great son of India who sacrificed his life in getting freedom for this country. Yes, absolutely. जैसे कि सभी जानते हैं कि नेताजी ने जुलाई 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और सबसे पहली बार संजीव जी भारत की प्रोविजनल आज़ाद हिंद फौज सरकार भी बनी थी और वो अंडमान निकोबार पर भी अपना कब्जा कर चुकी थी और बाद में वो मणिपुर में के मोइरांग में आकर के हारे और उसके बाद की जो इतिहास है वो सब जानते हैं। नेताजी ने उस समय 9 देशों से अपनी सरकार के लिए मान्यता प्राप्त की थी और इसीलिए अक्टूबर 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पर जाकर जो है आईएनए आज़ाद हिंद फौज वॉल का भी अनावरण किया था और कुछ ही देर बाद ये कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार का वितरण समारोह होगा। और आज सुबह, जैसे कि सभी जानते हैं कि माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने संसद भवन के मुख्य हॉल में जाकर के नेताजी की जो बस्ट है उस पर पुष्पांजलि अर्पित की। और आज एक देश के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है जबकि हम इस भारत के महान सपूत का ये होलोग्राम स्टैचू या होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कुछ ही समय बाद देखेंगे। And well, this is the 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. And Kaushik, when you were talking about the Indian National Army, I was suddenly reminded, sitting in this radio studios, that Netaji had started the Azad Hind Radio in January 1942 in Berlin, Germany. Absolutely. And that is the place where he started broadcasting speeches, and he was telling the world over that why India needs freedom, what is the importance of freedom, why the British colonizers should be thrown away from this country and India should become a sovereign democratic republic in the days to come. He had a foresight and he saw India as a free India, and that is the time he said, now there would be no discussions, nothing short of independence would be tolerated. And during his speeches, he had, made a deep impression on the Indian public, and Indians started listening to the German radio because that is the time they heard their own leader who was asking for independence at that point of time. Yes, you are absolutely right, Sanjeev. When Netaji returned from England, he was very much, taken by the teachings of Mahatma Gandhi, Swami Vivekananda, and other such great leaders of India. And he started working as a Congress worker. Then he also worked in the then Kolkata Municipal Corporation and became the youngest mayor of the city in the year 1931. And 7 years down the lane in 1938, at the Haripura Congress Convention, Netaji defeated Bapu's candidate
Pattabhi Sitaramaiah, another legendary freedom fighter, to become the Congress president. But, however, he was at odds with many people in the Congress party and chose to follow a different path. When he was arrested and spent some time at his home in Elgin Road, Kolkata, thereafter everyone, Sanjeev, I hope, remembers his, such an adventurous journey from Elgin Road, Kolkata, to the Netaji Subhas Chandra Bose Gomo Junction station in Jharkhand now, that time in undivided Bengal and Bihar. And then he reached Afghanistan, and from Afghanistan his journey to Nazi Germany. And as you rightly said, that he met with De Valera, the Prime Minister then of Ireland, and Mussolini, and also Hitler himself, and espoused the cause of a free India. And his call was, "Tum mujhe khoon do, main tumhe azadi dunga." You give me blood, and I shall give you freedom. And Sanjeev, another interesting point that I'd like to mention here is that as we look at this magnificent visual of the central vista today, which is going to be thrown open to the public in a very short time from now, and the hologram image, the hologram statue of Netaji Subhas Chandra Bose, and later on the granite statue, as you mentioned, will add that much significance to this very prominent place on the Raisina Hill, the capital of the country. And it was indeed Netaji who gave the call for Chalo Delhi, Delhi Chalo, way back in the 1940s. And I remember another thing, which of course you will also know, that he was so much loved by the populace and by the Azad Hind Fauj that when he arrived after a grueling, almost 3-month-long submarine journey into Singapore, and the INA had composed a special song for him, Subhash ji, wo jaane Hind aage. And this is something which still stirs very strong patriotic emotions in our country. Well, Kaushik, it was in July 1943 that he arrived in Singapore from Germany. Right. In Singapore, he took over the reins of the Indian independence movement in East Asia from Rash Bihari Bose and organized the Azad Hind Fauj, the Indian National Army, comprising mainly of Indian prisoners of war. He was hailed as Netaji by the army as well as the Indian civilian population in East Asia. Azad Hind Fauj proceeded towards India to liberate it from the British rule. And en route, Andaman and Nicobar Islands were liberated there and then. The INA headquarters was shifted to Rangoon in January 1944. Azad Hind Fauj crossed the Burma border and stood on Indian soil in March 1944. Well, that is again a story that the war began, but then subsequently, when Japan and Germany in the Second World War were defeated, the things slightly changed. जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक ख़ास बात ये भी है संजीव जी कि आपने कहा कि आज़ाद हिंद फ़ौज जो है भारत में 1944 में पहुंच चुकी थी, और ठीक उसके 2 साल बाद जबकि जो है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, 1946 में पहली बार the Indian armed forces, or rather the Indian sailors on board the Royal Navy mutinied. 1,100 sailors took up protests because they found their working and living conditions absolutely appalling, and that rather set the stage for the British government to hand over power to India, as they knew that the end was coming. But unfortunately, before that, in August 1945, at the Taihoku airport, Netaji Subhas Chandra Bose was declared as dead after suffering an air crash. He and his colleagues could not survive that air crash,
as per history. Thereafter, his ashes were interned at the Rinpoche temple in Tokyo. And when Prime Minister Narendra Modi visited Japan in the year 2014, one of the first acts of Prime Minister Modi was to visit the Rinpoche temple and also meet the friend and philosopher of Netaji Subhas Chandra Bose in Japan, Saichiro Mishumi. And All India Radio also had the privilege of meeting this great gentleman here in New Delhi in the year 2015 when he was conferred with the Padma Bhushan Award, the third highest civilian award of the country. And even now, Netaji is held in extremely high esteem in countries such as Japan, Chinese Taipei, Singapore, and many other parts of East Asia. Well, till very long, it was only a question that Netaji ever died in an air crash. But as the times changed, went on, things were confirmed. But it still remained a question whether he died in an aircraft or it was otherwise. But in any case, we lost a great hero who would have led the country after independence. Talking of the 1945, when you said the INA, I was reminded of the INA trials which were held in Red Fort. Right. And that is the time when INA leaders like Shah Nawaz Khan, Prem Sehgal and Gurbaksh Dhillon were tried at these trials. The great trials. And, during those trials, one of our lawyers, Bhulabhai Desai, he was the chief defense counsel, along with Sapru, Nehru, and Katju, who, it is said, he spoke continuously for almost about 10 hours, thereby defining that all those people, they were in fact soldiers, and a soldier cannot be treated as a murderer or who has committed a crime, and they should be given the status of a soldier. And finally, the British government had to yield to his wonderful exposition in the court, and they were, left as great soldiers who had fought for the nation. And Yes, you're absolutely right, Sanjeev. आपको ये बात भी अच्छी तरह याद है क्योंकि अब आज से जो है आज पराक्रम दिवस भी है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती भी है और 26 जनवरी को हमारी रिपब्लिक डे परेड भी होगी. तो रिपब्लिक डे परेड के अंदर भी जो है आईएनए की जो सोल्जर्स हैं उनके भी एक जत्था उस परेड में भाग लेती थी और आज भी लेती है. हालांकि अभी शायद बहुत कम लोग उसके होंगे उनके मेंबर्स, लेकिन ये भी एक ख़ास बात थी. और ये वो दस्ता है आईएनए जो कि हमेशा के लिए हिंदुस्तानियों के अंदर एक जोश पैदा करती है. और कुछ ही देर बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट वॉर मेमोरियल पे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कारों का आवंटन करेंगे और इसके साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे. और आज दिल्ली में बहुत मौसम भी बहुत ठंड है, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग ख़ास करके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा जोश और ऊर्जा दिखने को मिल रहा है. Well, 23rd of January has been declared as the Parakram Divas, and now onwards, every year, the Republic Day celebrations would start from 23rd January onwards rather than the 24th of January. And this day symbolizes a day of courage, a day of Parakram. And to honor the courageous people, the Union government has instituted annual Subhash Chandra Bose Aapda Prabandhan Puraskar to recognize and honor the invaluable contribution and selfless service rendered by individuals as well as organizations in India in the field of disaster management. Disasters keep coming in the forms of cyclones or rainfalls or floods, and these institutions and organizations play a mammoth role in saving the humans all around.
And the award is announced every year on the 23rd of January. The award carries a cash prize of rupees 51 lakhs and a certificate for an individual, and 5 lakh as a certificate for case of a organization. Yes, you're absolutely right, Sanjeev. And during the pandemic also, the National Disaster Management Agency and the State Disaster Rescue Forces played yeoman services by rendering their selfless service during calamities, as you mentioned, like the Kerala floods and at other places, and the cyclones that hit West Bengal, Odisha, as well as Maharashtra and Gujarat. And thereafter also, the National Disaster Management Agency trains personnel from other countries in human assistance and disaster relief, HADR, which is an important component of our armed and central armed police forces also. And this is something which many countries now come to seek India's help in training their personnel for the key management of disasters, as we have seen that in many friendly countries during the pandemic, India sent medical help and other humanitarian help also, and reached out to few countries with its own personnel to provide the much needed help during natural disasters. Well, during the disasters, radio is a medium of the disasters, and it is the radio which comes alive and saves people during disasters, because that is the only means of communication that remains alive during a disaster. And disaster giving and honoring the people who worked during the disasters on this Parakram with the Parakram Puraskar and on a Parakram Divas in the name of Netaji Subhas Chandra Bose is very rightly taken, because Netaji was an individual and who really fought for the country and who crossed all boundaries to get India independence. I would like to quote a few lines of Netaji. He said, "One individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in 1,000 lives." So it is an idea, it is a concept, it is a philosophy which lives on, and it's not the individual who goes on. That kind of philosophy he had gathered in the years when he lived, and even that philosophy is even alive today and with all of us. Yes, absolutely. You're very right. And this is indeed an ideology that is ever relevant. And it is very important that such individuals and organizations who provide such selfless service during the national disasters are recognized. And the Prime Minister has given a double gift, if one may say that it is the Parakram and as well as also the Subhas Chandra Bose Rashtriya Aapda Prabandhan Puraskar. And we wait the arrival of the dignitaries at the India Gate War Memorial. Meanwhile, this marching song of the Azad Hind Fauj.
जब तक रिश्ता धरती से आकाश का, दृढ़ निश्चय से मन के दृढ़ विश्वास का, तब तक गूंजेगा ही सारी दुनिया में, तब तक गूंजेगा ही सारी दुनिया में, नाम अमर नेताजी वीर सुभाष का, नाम अमर नेताजी वीर सुभाष का, नाम अमर नेताजी वीर सुभाष का। दिया अमर जय हिंद का नारा भारत को, कदम कदम बढ़ने का इशारा भारत को, बलिदानी आजाद हिंद की फौज बना, दिया चमकता शौर्य सितारा भारत को। जब तक रिश्ता है पानी से प्यास का, आजादी से बलिदानी इतिहास का, तब तक गूंजेगा ही सारी दुनिया में, तब तक गूंजेगा ही सारी दुनिया में, नाम अमर नेताजी वीर सुभाष का, नाम अमर नेताजी वीर सुभाष का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कुछ ही समय बाद सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार समारोह में शिरकत करेंगे और साथ ही वे सुभाष चंद्र बोस जी की होलोग्राम प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। जबकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये नेताजी की 125वीं जन्म जयंती का भी अवसर है, तो ये 28 फीट ऊंचा होलोग्राम स्टैचू और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय शहरी विकास मंत्री जी मंच पर उपस्थित हैं और कुछ ही समय बाद जो है माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा पुरस्कारों का आवंटन करेंगे और साथ ही होलोग्राम प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे इंडिया गेट पर। And Kaushik, at the backdrop is the portrait of the son of India, Netaji Subhas Chandra Bose, the great son of India. And in front of them are leaders, the Honorable Home Minister, Shri Amit Shah, and the Honorable Prime Minister of our country, Shri Narendra Modi, is seated on this dais. And in a short while from now, the disaster awards for the disaster management would be announced for the years 2019, 20, 21 and 22. It's a small function, but a function of great importance, because we are going to recognize the activities, that the tasks done by the men of valor, the men of courage. और अब हम निवेदन करते हैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से कि कृपया स्वागत संबोधन दें। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, देश के शहरी विकास मंत्री भाई हरदीप सिंह पुरी जी, आज उपस्थित सभी भाइयों बहनों और टीवी और ऑनलाइन जुड़े हुए देश के सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। आज
जैसे कि हम सब जानते हैं, नेताजी का जन्मदिन है, 125वां जन्मदिन है। और कुछ समय पहले ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिन के रूप में मनाने की शुरुआत करी। और आज इस पराक्रम दिन पर एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मोदी जी ने यह भी तय किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव में आजादी के गणतंत्र दिन की शुरुआत भी 23 तारीख से ही शुरू कर दी जाएगी। मित्रों, नेताजी की 125वीं जयंती को मनाने के हिस्से के रूप में इंडिया गेट के इसी स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा लगाने का एक निर्णय देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। नेताजी की प्रतिमा यही मार्ग पर देश की आने वाली पीढ़ियों को अनेक सालों तक, अनेक युगों तक पराक्रम, देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देगी। क्योंकि ये सिर्फ ग्रेनाइट से बनी हुई प्रतिमा नहीं होगी, ये प्रतिमा देश के करोड़ों लोगों के मन में जो नेताजी के लिए भाव पड़ा है, ये भाव की अभिव्यक्ति होगी कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरा अपना जीवन का सुख त्याग करते हुए लगभग 35,000 किलोमीटर की यात्रा या तो मोटर कार से या तो पनडुब्बी के अंदर नीचे, दरिया के नीचे करी, और कलकत्ता से लेके वाया बर्लिन से जापान तक की ये यात्रा भारत को आजाद करने का नेताजी का पुरुषार्थ था, एक भव्य प्रयास था। इसका प्रतीक ये प्रतिमा होगी। जब तक ये प्रतिमा लगेगी तब तक होलोग्राम से कुछ ही समय के बाद हम यहां पर नेताजी की प्रतिमा की प्रतिकृति देखेंगे। और आज पूरे देश के करोड़ों लोगों को मन को शांति मिलेगी कि नेताजी का जिस प्रकार का योगदान आजादी के संघर्ष के लिए रहा, आजादी के आंदोलन के लिए रहा, वो उसका सम्मान करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने सालों के बाद किया है। और ये प्रतिमा इसका प्रतीक बनकर रहने वाली है। चलो दिल्ली का नारा आज भी युवाओं को चेतना और ऊर्जा प्रदान करता है। उनके संघर्ष की गाथाएं आज भी युवाओं को भारत के पुनर्निर्माण के साथ जोड़ती है। और उनका ये पूरा व्यक्तित्व आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इससे कई युवा प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे। मित्रों, नेताजी का ये जो 35,000 किलोमीटर का यात्रा है, वो यात्रा का पूरा मार्ग मुझे लगता है कि देश के युवाओं को इसी मूर्ति की स्थापना के साथ वो पूरे घटनाक्रम को अभ्यास करने का भी मन होगा और उसमें से प्रेरणा लेने का भी मन होगा। कई सालों तक देश के अंदर जिन्होंने आजादी के संघर्ष के अंदर, आजादी के आंदोलन के अंदर जिन्होंने बड़ा पराक्रम किया है, बड़ा योगदान दिया, इन लोगों को नाम को भुलाने का प्रयास किया गया। आज आजादी के अमृत वर्ष के योग पर नेताजी की प्रतिमा यहां लगाने का जो फैसला किया गया है, इससे पूरा देश संतोष और उत्साह का अनुभव कर रहा है। मित्रों, जब ये प्रतिमा यहां पर लग जाएगी तब इतिहास को भी अपने प्यारे बेटे को यहां देखकर बहुत संतोष होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं हम सब की ओर से, पूरे देश की ओर से इस फैसले को, प्रधानमंत्री जी को इस फैसले लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने एक और बड़ा निर्णय किया है कि देश के अंदर जो नेताजी के नाम से एक पुरस्कार चालू किया है, और ये पुरस्कार भी आज यहां पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी यहां पर दिए जाएंगे। वर्ष 19, वर्ष 20 और वर्ष 21 और 22 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी यहां पर दिए जाएंगे। इससे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों को सुभाष चंद्र बोस के नाम से साथ जुड़े हुए पुरस्कार हमेशा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कामगिरी करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। आज ये दोनों अवसर पर
मैं गृह मंत्रालय की ओर से मोदी जी का धन्यवाद भी करता हूं, आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आज जो नई शुरुआत हुई है, मुझे विश्वास है ये नई शुरुआत से देश के युवाओं को अनेक वर्षों तक प्रेरणा मिलती रहेगी। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अंतिम विजय हमारी ही होगी। हमारे मरने से अगर भारत जी उठे तो हमें हंसते हंसते मर जाना चाहिए। भारत माँ के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस सूर्य पुत्र थे, जिनकी चिंगारी से हर भारतीय के हृदय में स्वतंत्रता की मशाल जला करती थी। दुश्मन भी थर्राया करते थे। उनके जय हिंद के नारे में वो शक्ति हुआ करती थी। आजाद हिंद फौज का वो प्रेरणा गीत कदम कदम बढ़ाए जा आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। हम आपको बता दें कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस महान विभूति के होलोग्राम स्टैचू के अनावरण के साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वंदन के रूप में वही गीत बजाया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि जब वो गीत बजे तो हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अब हम विनम्र आग्रह करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के होलोग्राम स्टैचू का अनावरण करें रिमोट का बटन दबाकर। And the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, is now, that's the hologram statue of Netaji Subhash Chandra Bose. Indeed, a befitting tribute to this great son of India. And Sanjeev ji, as we can see, the hologram being lit up on the canopy near India Gate, it gives us immense pride, and indeed it's a privilege to watch this hologram statue of Netaji, and he is giving his salute to the motherland. Indeed, a proud moment for a proud India which is celebrating its Azadi Ka Amrit Mahotsav. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से पराक्रमी भारत न पराजित हुआ है, न झुका है, न रुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें बलिदानियों, स्वतंत्रता सेनानियों की तरह देश के लिए मरने का अवसर चाहे न मिला हो, लेकिन हम देश के लिए जीकर तो दिखा सकते हैं। आज उन व्यक्तियों या संगठनों को पुरस्कृत किया जाएगा जो आपदाओं के कारण मानव पीड़ा को कम करने के लिए निस्वार्थ भाव से परिश्रम पूर्वक काम कर रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करें। 2019 के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। 8वीं बटालियन एनडीआरएफ पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री पीके तिवारी। 8वीं बटालियन एनडीआरएफ ने 2009 से 2018 तक 310 से ज्यादा आपदा बचाव अभियान के जरिए 14,465 मानव जीवन की रक्षा की। 10 लाख लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस तथा ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ा। 2020 के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है श्री के सिंह, पूर्व डीजी सीआईएसएफ। आपने 3-tier डिजास्टर रिस्पांस मैकेनिज्म के निर्माण की नींव रखी। आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में सिविल डिफेंस के एक्टिव पार्टिसिपेशन की परिकल्पना को भी आपने प्रतिपादित किया। 2020 के लिए ही डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर उत्तराखंड को पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री एसए मुरुगेसन आईएएस। डीएमएमसी का कार्य आपदा पूर्व तैयारी, कैपेसिटी बिल्डिंग, आपदा के बाद की प्रतिक्रिया तथा रिहैबिलिटेशन पर केंद्रित है।
वैज्ञानिक तथा शैक्षिक संस्थाओं और राज्यों के विभागों के बीच संवाद स्थापित किया जाता है। 2021 के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है श्री राजेंद्र कुमार भंडारी को। आप डिजास्टर मिटिगेशन पर इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग फोरम के अध्यक्ष हैं। आपने भारत में जियो हैजार्ड्स और भूस्खलन पर वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी, भूस्खलन अध्ययन की पहली प्रयोगशाला भी स्थापित की। 2021 के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स को। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर अंशु शर्मा। सीड्स पिछले 28 सालों से आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से प्रभावित हो सकने वाले लोगों को रेजिलियंस निर्माण की दिशा में काम कर रही है। 2022 के लिए प्रोफेसर विनोद कुमार शर्मा को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। भारत में डीआरआर में आपके अग्रणी कार्य ने आपको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष के रूप में आपने सिक्किम को डीआरआर लागू करने में एक आदर्श राज्य बनाया है। 2022 के लिए ही गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री पी के तनेजा डीजी। GIDM ने पेंडेमिक के दौरान मल्टी हैजार्ड रिस्क मैनेजमेंट तथा रिडक्शन के लिए 12,000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया। फायर से संबंधित पोर्टल, कोविड से संबंधित मोबाइल ऐप भी विकसित किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका और सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई। भारतवासियों, मां भारती आज गर्वित है कि उसके वीर पुत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनन्य अनुगामी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मां भारती की सुरक्षा, समृद्धि तथा जनता की सेवा के लिए सदैव बेचैन रहते हैं, जो स्वयं से आगे स्वदेश रखते हैं, स्वमेव से आगे ध्येय रखते हैं, जो देश हित में कड़ी से कड़ी चुनौती से डटकर जूझ जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का वो तराना आज शब्दशः चरितार्थ हो रहा है। शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग है जागा, सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम सुभागा। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि कृपया हम सबको प्रेरणा ज्योति से रोशन करें। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री अमित शाह, श्री हरदीप पुरी जी, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, आईएन के सभी ट्रस्टी, एनडीएमए के सभी सदस्यगण, जूरी मेंबर्स, एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड्स और आईएमडी के डायरेक्टर जनरल, आपदा प्रबंधन पुरस्कारों के सभी विजेता साथी, अन्य सभी महानुभाव, भाइयों और बहनों, भारत मां के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती पर पूरे देश की तरफ से मैं आज कोटि कोटि नमन करता हूं। ये दिन ऐतिहासिक है, ये कालखंड भी ऐतिहासिक है और ये स्थान जहां हम सभी एकत्रित हैं वो भी ऐतिहासिक है। भारत के लोकतंत्र की प्रतीक हमारी संसद पास में है, हमारी क्रियाशीलता और लोकनिष्ठा के प्रतीक अनेक भवन भी हमारे साथ पास में नजर आ रहे हैं, हमारे वीर शहीदों को समर्पित नेशनल वॉर मेमोरियल भी पास है। इन सब के आलोक में आज हम इंडिया गेट पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को
आदरपूर्वक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नेताजी सुभाष जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया था, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। जिन्होंने भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया था, हमारे उन नेताजी की भव्य प्रतिमा आज डिजिटल स्वरूप में इंडिया गेट के समीप स्थापित हो रही है। जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। ये प्रतिमा आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। नेताजी सुभाष की ये प्रतिमा हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को, हमारे पीढ़ियों को राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराएगी, आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। साथियों, पिछले साल से देश ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। आज पराक्रम दिवस के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिए गए हैं। नेताजी के जीवन से प्रेरणा लेकर ही इन पुरस्कारों को देने की घोषणा की गई थी। साल 2019 से 2022 तक उस समय के सभी विजेताओं, सभी व्यक्तियों, सभी संस्थाओं को जिन्हें आज सम्मान का अवसर मिला है, उन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे देश में आपदा प्रबंधन को लेकर जिस तरह का रवैया रहा था, उस पर एक कहावत बहुत सटीक बैठती है, जब प्यास लगी तो कुआं खोदना। और जिस मैं काशी क्षेत्र से आता हूं, वहां तो एक और भी कहावत है, वो कहते हैं भोज गड़ी कोहड़ा रोपे, यानी जब भोज का समय आ गया तो कोहड़े की सब्जी उगाने लगना। यानी जब आपदा सिर पर आ जाती थी तो उससे बचने के उपाय खोजे जाते थे। इतना ही नहीं, एक और हैरान करने वाली व्यवस्था थी जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है। हमारे देश में वर्षों तक आपदा का विषय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास रहा था। इसका मूल कारण यह था कि बाढ़, अतिवृष्टि, ओले गिरना, ऐसी जो स्थितियां पैदा होती थी, उसे निपटने का जिम्मा, उसका संबंध कृषि मंत्रालय से आता था। देश में आपदा प्रबंधन ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन 2001 में गुजरात में भूकंप आने के बाद जो कुछ हुआ, देश को नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर किया। और उसने
आपदा प्रबंधन के मायने बदल दिए। हमने तमाम विभागों और मंत्रालयों को राहत और बचाव के काम में झोंक दिया। उस समय के जो अनुभव थे उनसे सीखते हुए ही 2003 में गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया। आपदा से निपटने के लिए गुजरात इस तरह का कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना। बाद में केंद्र सरकार ने गुजरात के कानून से सबक लेते हुए 2005 में पूरे देश के लिए ऐसा ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया। इस कानून के बाद ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके गठन का रास्ता साफ हुआ। इसी कानून ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी देश की बहुत मदद की। साथियों, डिजास्टर मैनेजमेंट को प्रभावी बनाने के लिए 2014 के बाद से हमारे सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर चौतरफा काम किया है। हमने रिलीफ, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, उस पर जोर देने के साथ साथ ही रिफॉर्म पर भी बल दिया है। हमने एनडीआरएफ को मजबूत किया, उसका आधुनिकीकरण किया, देश भर में उसका विस्तार किया, स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर प्लानिंग और मैनेजमेंट तक बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिसेस को अपनाया। हमारे एनडीआरएफ के साथ ही सभी राज्यों के एसडीआरएफ और सुरक्षा बलों के जवान अपनी जान की बाजी लगाकर एक एक जीवन को बचाते हैं। इसलिए आज ये पल इस प्रकार से जान की बाजी लगाने वाले, औरों की जिंदगी बचाने के लिए खुद की जिंदगी का दाव लगाने वाले, चाहे वो एनडीआरएफ के लोग हो, चाहे एसडीआरएफ के लोग हो, हमारे सुरक्षा बलों के साथी हो, ये सब के सब उनके प्रति आज आभार व्यक्त करने का, उनको सैल्यूट करने का ये वक्त है। साथियों, अगर हम अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करते चलें तो आपदा से निपटने की क्षमता दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। मैं इसी कोरोना काल के 1-2 वर्ष की बात करूं तो इस महामारी के बीच भी देश के सामने नई आपदाएं आकर खड़ी हो गई। एक तरफ कोरोना से तो लड़ाई लड़ी रहे थे, अनेक जगहों पर भूकंप आए, कितने ही क्षेत्रों में बाढ़ आई, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल समेत पूर्वी तटों पर साइक्लोन आए, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी तटों पर भी साइक्लोन आए। पहले एक एक साइक्लोन में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। देश ने हर चुनौती का जवाब एक नई ताकत से दिया। इसी वजह से इन आपदाओं में हम ज्यादा से ज्यादा जीवन बचाने में सफल रहे। आज बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत के इस सामर्थ्य, भारत में आए इस बदलाव की सराहना कर रही है। आज देश में एक ऐसा एंड टू एंड साइक्लोन रिस्पॉन्स सिस्टम है जिसमें केंद्र, राज्य, स्थानीय प्रशासन और सभी एजेंसियां एक साथ मिलकर के काम करती हैं। बाढ़, सूखा, साइक्लोन, इन सभी आपदाओं के लिए वार्निंग सिस्टम में सुधार किया गया है। डिजास्टर रिस्क एनालिसिस के लिए एडवांस टूल्स बनाए गए हैं।
राज्यों की मदद से अलग अलग क्षेत्रों के लिए डिजास्टर रिस्क मैप्स बनाए गए हैं। इसका लाभ सभी राज्यों को, सभी स्टेक होल्डर्स को मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन आज देश में जन भागीदारी और जन विश्वास का विषय बन गया है। मुझे बताया गया है कि एनडीएमए की आपदा मित्र जैसी स्कीम से युवा आगे आ रहे हैं, आपदा मित्र के रूप में जिम्मेवारियां उठा रहे हैं, यानी जन भागीदारी बढ़ रही है। कहीं कोई आपदा आती है तो लोग विक्टिम नहीं रहते, वो वॉलेंटियर्स बनकर आपदा का मुकाबला करते हैं। यानी आपदा प्रबंधन अब एक सरकारी काम भर नहीं है, बल्कि ये सबका प्रयास का एक मॉडल बन गया है। और साथियों, जब मैं सबका प्रयास की बात करता हूं तो इसमें हर क्षेत्र में हो रहा है प्रयास, एक होलिस्टिक अप्रोच भी शामिल है। आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में भी कई सारे बदलाव किए हैं। जो सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं, आर्किटेक्चर से जुड़े कोर्सेज होते हैं, उसके पाठ्यक्रम में डिजास्टर मैनेजमेंट से जोड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर की रचना कैसी हो उस पर विषयों को जोड़ना, ये सारे काम प्रयासरत हैं। सरकार ने डैम फेलियर की स्थिति से निपटने के लिए डैम सेफ्टी कानून भी बनाया है। साथियों, दुनिया में जब भी कोई आपदा आती है तो इसमें लोगों की दुखद मृत्यु की चर्चा होती है कि इतने लोग मृत्यु हो गई, इतना ये हो गया, इतने लोगों को हटाया गया। आर्थिक नुकसान भी बहुत होता है, उसकी भी चर्चा की जाती है। लेकिन आपदा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है वो कल्पना से परे होता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आज के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ऐसा हो जो आपदा में भी टिक सके, उसका सामना कर सके। भारत आज इस दिशा में भी तेजी से काम कर रहा है। जिन क्षेत्रों में भूकंप, बाढ़ या साइक्लोन का खतरा ज्यादा रहता है, वहां पर पीएम आवास योजना के तहत बन रहे घरों में भी इसका ध्यान रखा जाता है। उत्तराखंड में जो 4 धाम महापरियोजना का काम चल रहा है, उसमें भी आपदा प्रबंधन का ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश में जो नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, उनमें भी आपदा प्रबंधन से जुड़ी बारीकियों को प्राथमिकता दी गई है। आपात स्थिति में एक्सप्रेस वे विमान उतरने के काम आ सके, इसका भी प्रावधान किया गया है। यही नए भारत का विजन है, नए भारत के सोचने का तरीका है। साथियों, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की इसी सोच के साथ भारत ने दुनिया को भी एक बहुत बड़ी संस्था का विचार दिया है, उपहार दिया है। ये संस्था है CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत की इस पहल में ब्रिटेन हमारा प्रमुख साथी बना है और आज दुनिया के 35 देश इससे जुड़ चुके हैं। दुनिया के अलग अलग देशों के बीच में, सेनाओं के बीच में हमने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत देखी है, पुरानी परंपरा है, उसकी चर्चा भी होती है। लेकिन भारत ने पहली बार डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ज्वाइंट ड्रिल की परंपरा शुरू की है। कई देशों में मुश्किल समय में हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी एजेंसियों ने अपनी सेवाएं दी हैं, मानवता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। जब नेपाल में भूकंप आया
इतनी बड़ी तबाही मची तो भारत एक मित्र देश के रूप में उस दुख को बांटने के लिए जरा भी देरी नहीं की थी। हमारे एनडीआरएफ के जवान वहां तुरंत पहुंच गए थे। डिजास्टर मैनेजमेंट का भारत का अनुभव सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। आप सभी को याद होगा 2017 में भारत ने साउथ एशिया जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया था। वेदर और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में उसका लाभ हमारे दक्षिण एशिया के मित्र देश को मिल रहा है। साथियों, परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर हम में हौसला है तो हम आपदा को भी अवसर में बदल सकते हैं। यही संदेश नेताजी ने हमें आजादी की लड़ाई के दौरान दिया था। नेताजी कहते थे, कभी भी स्वतंत्र भारत के सपने का विश्वास मत खोना। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को झकझोर सके। आज हमारे सामने आजाद भारत के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य हैं। हमारे सामने आजादी के 100वें साल से पहले 2047 के पहले नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है। और नेताजी को देश पर जो विश्वास था, जो भाव नेताजी के दिल में उभरते थे, और उनके इन भावों के कारण मैं कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को इस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सके। हमारी सफलताएं हमारी संकल्प शक्ति का सबूत है, लेकिन ये यात्रा अभी लंबी है। हमें अभी कई शिखर और पार करने हैं। इसके लिए जरूरी है हमें देश के इतिहास का हजारों सालों की यात्रा में इसे आकार देने वाले तप, त्याग और बलिदानों का बोध रहे। भाई और बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव का संकल्प है कि भारत अपनी पहचान और प्रेरणाओं को पुनर्जीवित करेगा। ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल थी, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिश हुई। लेकिन आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है, ठीक कर रहा है। आप देखिए, बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े पंच तीर्थों को देश उनकी गरिमा के अनुरूप विकसित कर रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज पूरी दुनिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल के यशगान की तीर्थ बन गई है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत भी हम सब ने कर दी है। आदिवासी समाज के योगदान और इतिहास को सामने लाने के लिए अलग अलग राज्यों में आदिवासी म्यूजियम्स बनाए जा रहे हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी हर विरासत को भी देश पूरे गौरव से संजो रहा है। नेताजी द्वारा अंडमान में तिरंगा लहराने की 75वीं वर्षगांठ पर अंडमान के एक द्वीप का नाम उनके नाम पर रखा गया है। अभी दिसंबर में ही अंडमान में एक विशेष संकल्प स्मारक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए समर्पित की गई है। ये स्मारक नेताजी के साथ साथ इंडियन नेशनल आर्मी के उन जवानों के लिए भी
एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले वर्ष आज के ही दिन मुझे कोलकाता में नेताजी के पैतृक आवास भी जाने का अवसर मिला था। जिस प्रकार से वो कोलकाता से निकले थे, जिस कमरे में बैठकर वो पढ़ते थे, उनके घर की सीढ़ियां, उनके घर की दीवारें, उनके दर्शन करना, वो अनुभव शब्दों से परे है। साथियों, मैं 21 अक्टूबर 2018 का वो दिन भी नहीं भूल सकता जब आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष हुए थे। लाल किले में हुए विशेष समारोह में मैंने आजाद हिंद की कैप पहनकर तिरंगा फहराया था। वो पल अद्भुत था, वो पल अविस्मरणीय है। मुझे खुशी है कि लाल किले में ही आजाद हिंद फौज से जुड़े एक स्मारक पर भी काम किया जा रहा है। 2019 में 26 जनवरी की परेड में आजाद हिंद फौज के पूर्व सैनिकों को देखकर मन जितना प्रफुल्लित हुआ, वो भी मेरी अनमोल स्मृति है। और इससे भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि हमारी सरकार को नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने का अवसर मिला। साथियों, नेताजी सुभाष कुछ ठान लेते थे तो फिर उन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। हमें नेताजी सुभाष की कैन डू, विल डू स्पिरिट से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। वो ये जानते थे, तभी ये बात हमेशा कहते थे, भारत में राष्ट्रवाद ने ऐसी सृजनात्मक शक्ति का संचार किया है जो सदियों से लोगों के अंदर सोई पड़ी थी। हमें राष्ट्रवाद भी जिंदा रखना है, हमें सृजन भी करना है और राष्ट्र चेतना को जागृत भी रखना है। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर भारत को नेताजी सुभाष के सपनों का भारत बनाने में सफल होंगे। आप सभी को एक बार फिर पराक्रम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं आज एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोगों को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि बहुत छोटे कालखंड में उन्होंने अपनी एक पहचान बना दी है। आज कहीं पर भी आपदा हो या आपदा के संबंधित संभावनाओं की खबरें हो, साइक्लोन जैसी, और जब एनडीआरएफ के जवान यूनिफॉर्म में दिखते हैं, सामान्य मानवी को एक भरोसा हो जाता है कि अब मदद पहुंच गई। इतने कम समय में किसी संस्था और इसके यूनिफॉर्म की पहचान बनना, यानी जैसे हमारे देश में कोई तकलीफ हो और सेना के जवान आ जाएं, तो सामान्य मानवी को संतोष हो जाता है, भाई बस अब ये लोग आ गए हैं। वैसा ही आज एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने अपने पराक्रम से ये करके दिखाया है। मैं पराक्रम दिवस पर नेताजी का स्मरण करते हुए मैं एनडीआरएफ के जवानों को, एसडीआरएफ के जवानों को, उन्होंने जिस काम को जिस करुणा और संवेदनशीलता के साथ उठाया है, बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मैं जानता हूं इस आपदा प्रबंधन के काम में इस क्षेत्र में काम करने वाले कईयों ने अपने जीवन भी बलिदान दिए हैं। मैं आज ऐसे जवानों को भी श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने किसी की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। ऐसे सबको मैं आदरपूर्वक नमन करते हुए मैं आप सबको भी आज पराक्रम दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। That was our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi inspiring the entire nation on Parakram Divas.
the 125th birth anniversary of Netaji Subhas Chandra Bose. He conferred 7 Aapda Prabandhan Puraskars for the years 2019 to 2022 and unveiled the hologram statue of Netaji at India Gate. He mentioned about disaster prevention, preparedness, response and recovery mechanism. He also mentioned about relief, rescue and rehabilitation activities. Prime Minister praised the Corona warriors and disaster management heroes of the national and state disaster management forces. He also praised the National Disaster Management Aapda Mitra scheme, where people have become volunteers instead of victims. That was a great moment for the entire nation. जी बिल्कुल संजीव जी, जैसे कि आपने बताया, माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के इस विशेष कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का होलोग्राम प्रतिमा का भी अनावरण किया। आज पराक्रम दिवस की उन्होंने सबको शुभकामनाएं भी दी और कहा कि हमें 2047 तक नेताजी के सपनों को साकार करना है। और हम लोग भी अब इस कार्यक्रम से आपको दिल्ली के स्टूडियो लिए चलते हैं। इस कार्यक्रम की आंखों देखा हाल अंग्रेजी में संजीव दोसांझ और मैं कौशिक राय आप तक पहुंचा रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन